everyone, how have you been? I hope you're doing great. I hope you're doing all peachy. Welcome to the very session. This is your English educator Nidhi Arora. Now, I think I do like to believe that I'm audible and live all at the same time, that you all can hear me and see me with proper visibility, and you can hear me like pretty loud and clear. Just notify me in the comment section as to if we are able to connect with each other or not. Okay, with that said, let me just start off with the show. Let me just begin the session, as today's topic is a one short revision on an elementary school classroom in Islam. Okay, bacha. So here in this very session, students are likely to get fumbled. Okay, what does this elementary school classroom mean? So now, before you get to understand the crux and the idea or the essence maybe behind the logistical title, let me just walk you through around कि इसका translation क्या है. Okay, so an elementary school classroom in a slum का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा एक झुग्गी झोपड़ी या बस्ती में. ओके, स्लम क्या होता है बेटा? बस्ती. दैट मीन्स एक बस्ती में प्राथमिक. एलिमेंट्री क्या होता है? जो स्टार्टिंग है, लाइक बिलो योर फिफ्थ स्टैंडर्ड योर एलिमेंट्री क्लासेस गो ऑन. सो एन एलिमेंट्री मतलब है प्राथमिक. स्कूल होता है विद्यालय, क्लासरूम में शिक्षा. ओके, सो झुग्गी झोपड़ी में एक प्राथमिक कक्षा का विद्यालय, यानी कि you have a school. So one, like somebody has a school in a slum area, so somebody goes to a school in a slum area और वो अपनी बिलो अंडर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक की क्लासेस अटेंड करता है. सो व्हाट्स देयर स्कूल like basically, what does their school look like and how do they function, what are their functionalities, what are their disciplines, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है. Now before we dive into the very story or the poem, which is ideally the second poem of your flamingo book, इसमें let me just walk you through around my introduction and let me just walk you through around my specifications, so to speak. Okay, I think we all have gathered by now, so without any further ado, let's just begin. Okay, welcome to the class, dear learners. As I was saying that my name is Nidhi Arora and I'm your English educator on your Unacademy, India's largest online learning platform. Now, apart from my name, I do possess some functionality, some past specifications and acknowledgements, which I'd love to walk you through around. Alright, so this is what it looks like basically. So apart from my name, as I was saying, that I have been in a tech space, I've been in education sector for about more than 3 years now. 3 years is a good time to understand the crux of this sector, this space. And in all of my years of experience in teaching, I would say that I've successfully mentored and coached more than 5,000 students till date. The students were slash are primarily NDA and SSC aspirants. So the students whom I dealt with were majorly, जितने भी वो बच्चे थे ना, ज़्यादातर वो NDA और SSC backgrounds के थे. Some of them were adults, most of them in fact. Not just that, you've got to understand that we are here playing very safely. Okay, you guys are in safe hands, because not only the aspect of competitive exams, I've also dealt with a genre wherein students were also largely coming from CBSE and state board backgrounds. Okay, I've also dealt with notorious and little mischievous munchkins like you, जो आप ही लोगों की तरह थे. एंड अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं whom I'm dealing with. So that's basically about me, myself, my past background and my students, my history. Okay, now when it comes to my own self, my accolades, then I must tell you that I am an Inspire scholar and I tell is qualified, and I've written GMAT as well. Speaking of, as with regard to my educational background, then I am a graduate in chemistry from Hansraj College, Delhi University. Post that, I've also pursued my post-graduation in chemistry itself from Jamia. Okay, that is pretty much about my introduction. As far as my introduction is concerned, I hope I am done explaining it to you, whilst you are done understanding the crux of who this educator is, just so you get scandalized. Okay, now with that said, if there are any leftover doubts in your muddle heads, kindly keep on asking me.
drop in your doubts in the comment section and I will try to rectify it ASAP, okay, on highest priority. चलो जी आगे बढ़ जाते हैं. लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू अराउंड आर टेलीग्राम चैनल बेटा. जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, अनअकैडमी स्कॉलर्स के नाम से, आपको इस कम्युनिटी को फटाफट से ज्वाइन करना है. दिस शुड बी योर आइडियल थिंग टू डू एट द मोमेंट. ओके, आई गिव यू 5 seconds और सो इन ऑर्डर टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी. इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल हूबहू एज इट इज गिवन है. जस्ट ज्वाइन दिस कम्युनिटी. एंड नाउ इफ यू आस्क मी मैम, आर वी लाइक, डज अनअकैडमी चार्ज एनीथिंग आउट ऑफ इट? नो. The answer would be no. This the joining process and participating and being active on this very group is absolutely for free. You don't have to charge any like even don't like even a single penny of it, of the sessions. Now why is this group necessary for you all? Let me just elucidate it to you. The idea behind you getting in touch with your educators, getting to know more closely about their classes, about their sessions, about their upcoming sessions, and about their notes, most importantly, is our ulterior goal. Okay, so what you're supposed to do is, आपको अगर notes में participate करना है, so kindly join in this group. ठीक है, आपको नोट्स, जो भी आप टॉपिक के लिए नोट्स मांगोगे, यू विल गेट द रेफरेंस एंड द नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDF इन दिस ग्रुप इटसेल्फ. ओके, आपको क्लास से रिलेटेड कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो समटाइम्स इट सो हैपेंस इज यूट्यूब बाय एनी चांस स्किप्स आउट ऑन सेंडिंग यू the notifications even if you hit the bell icon. So thereby telegram channel comes into the rescue, works as a rescue to us, जिसमें क्लास किस टाइम पे हो रही है, नहीं हो रही है, everything will get sorted to you. Okay, everything will be made well versed to you. Okay, chalo, with that said, let's I think by now you all have joined the group, joined the community. Now कोई भी अनअकैडमी पे, like with correspondence to the same, if you wanna get withered away with any of the subscriptions on Unacademy, if you were or are planning on to go for a purchase from Unacademy subscription, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आइकॉनिक लेना है, या फिर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना है, बस कोई भी फीचर को फ्री में अनलॉक करना है, जस्ट डू नॉट फॉरगेट, आई रिपीट, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई माई कोड विच इज़ Nidhi01. It only gets applied on Unacademy Learning app. Okay, it's a regular application wherein you get features like Ask a Doubt, Bugs Bounty, yada yada. Okay, so Bugs Bounty is an impeccably great, it's a phenomenal feature. What does this feature do basically is, I will tell you that ये जो Unacademy Ask a Doubt feature है ना, you get to ask unlimited doubts. Okay, आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, किसी भी टाइम पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो. आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे. आपको अपने क्वेश्चंस का एग्जैक्ट मैच मिलेगा, आपको लाखों क्वेश्चंस के इंस्टेंट और एक्यूरेट सोल्यूशंस मिलेंगे, और आपको आपके होमवर्क में भी हेल्प मिलेगी. सो ऑल ऑफ दीज इशूज़ विल, लाइक अनरिजॉल्व्ड इशूज़ विल गेट रिजॉल्व्ड automatically while you know exploit and explore this feature to the fullest. I'd much rather say that if you utilize this feature to the fullest, shall we? I think we will. Okay, let me just check. Yes, I think we are sorted, we are good to go. Now let's just carry on. There are certain procedures as to how should you ask a doubt. Okay, बहुत ही mundane, बहुत ही diverse and fine features है जिसमें आपको बताया जाता है यार ये procedure follow करो. It's a regular application, बस आपका काम आसान करने के लिए, just to get that feature to your hand at the single click of your mouse button. We have made some things pretty much easy and idealistic for you. वैसे तो ideal condition कुछ नहीं होता है, it's very hypothetical, but non-ideal conditions maybe what you're supposed to do is you have to have the Unacademy Learning app. It's a must thing, a must. ठीक है, to have this application जहाँ पे आपको special क्लासेस से भी वाकिफ़ होने का मौका मिलता है. बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं ऑल इन ऑल इसमें.
So this primo step is not mentioned anywhere here, but it's a must thing. After that only you can just proceed to further steps. So one thing will lead to another eventually. So after you download any application, any regular application, what you're supposed to do is just verify yourself while making an account by signing up or signing in. Okay, so after you've made an account, you will set up a profile picture of yours, which shall be your not so Aadhaar card looking wala profile. Okay, so underneath your photo, underneath your profile photo, there will be an option by the name of ask a doubt. You just click on the ask a doubt wala part. Okay, now step 2 will automatically lead you to two options, wherein आपको क्या करना है, either you take a picture of your doubt or you choose it from your gallery. Okay, these are the very mundane, very नॉमिनल स्टेप्स विच यू आर टू फॉलो. किसी भी बुक से कैसा भी आपका डाउट हो सकता है, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए डाउट. लाइक दिस इज द अटमोस्ट कंडीशन दैट आवर सिस्टम रिक्वायर्स. नाउ जस्ट टू नॉट कंफ्यूज इट विद एनी फर्दर मंडेन डाउट्स, आप क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके रखो या उस टाइम पे गैलरी से चूज कर लो. बोथ दीज ऑप्शंस आर इक्वली फीजिबल. स्टेप थर्ड विल टेक यू टू योर क्वेश्चन का फोटो इटसेल्फ. आपका जो भी फोटो होगा यू सिलेक्टेड. स्टेप फोर्थ में आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से चमका देना है, इस सेशन की तरह, इस लेक्चर की तरह. जी हाँ, सही पकड़े हैं जी. सो पोज दैट आफ्टर यू क्रॉप your particular question, even if you have multiple doubts, consecutive doubts coming your way, you must, like, it does become of you to only ask one doubt at a time. Okay, so one doubt at a time should you ask, just to not confuse our AI. Okay, our system, automated system, that is. So that's that. Step fifth mein what you'll do is you will categorize your question into a particular subject. Okay, so what does this where is this doubt coming from? Either it is from your social science or your sciences, English और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, कहीं कभी वो जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे उसको सर्टिफाई कर दो, कैटेगराइज कर दो. स्टेप 6 में सिट अप टाइट, हैंग इन देयर, सिट बैक, रिलैक्स, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड a top-notch solution both in English as well as in Hindi by our experts. Okay, so bite their heads off to the fullest. Yes, we will. Okay, now before moving and diving into the very topic, what I'm gonna do is I'm gonna ask you a certain things prerogative to the session. My question to you would be, where have you completed your elementary schooling from? आपने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा का जो विद्यालय था आपका, वो कैसा था और कहाँ से आपने प्राप्त करी है? ओके, to collate it, I'll just give you my backdrop just so you understand me more. Number one is that, and number two is you get a rough idea and brief idea as to how are we supposed to explain it to our educators. Okay, so me personally, speaking of my own self, I had a very what do you call it, a very little narrative, okay, around me while I was born and I was gaining my nursery and early prep classes. So I had a very small and a very tiny school, so to speak, wherein the school would exactly look like a house, 2 BHK house. Okay, जहाँ पे मेरा school होता था, there were only two teachers. So only two teachers were there. One is for nursery and other one is for KG section. We would play there, we would learn to write there, but the only advantage I got from my early preliminary classes were that I got utmost attention from my teachers. Okay, unlike other teachers who would have to have so much of responsibilities in order to attain kids belonging from first, second, third, fourth, fifth standards. Dealing with such kids was one heck of a deal. I mean, they would have to, it was a big deal because these sections, these standards used to be, they still are, they still act as stepping stones for any child. Okay, these building age of a child decides their future only. So what the I only found the best in everything. So I thought that having a small narrative also worked the best for me. Okay, worked out the best for me.
Now, as soon as my KG class gets over, I surpassed it very gracefully. My parents had thought of shifting me to a school which had, more exposure, while I was supposed to get admitted to my first standard, right? Now, up till this point of time of my life, up till that time, I only knew of schools who were inside some house and they were, 2 BHK sized schools only. I didn't ever know, I had no freaking idea on earth that schools could be this big and giant and this gigantic schools. Okay, they could have, schools could have been possible in such, magnanimous areas. So as soon as I got transferred to, higher level school, so to call it, I was just scandalized of the idea because my world was so small. My world was so limited. I had constraints up to my family and my school. Little did I know that schools had broader perspectives, schools have broader horizons. So while I got shifted to that school, I had an exposure to everything and anything under the sky, trust me or not. Okay, so but that was a transitioning phase of my life wherein from a school with, having very limited facilities to getting shifted to a school wherein I got an exposure of horse riding to swimming to, every goddamn co-curricular activities came my way, and I totally had the time of my life up till like from my first standard to my 12th standard. It has been really magnanimous, really if efficient, I'd say. Okay, that I had the time of my life, honestly. So that was my transitioning phase. Now, speaking of the idea of the genre of my school, I'd say that I have studied, like, my preliminary classes had been done from a very like mother touch types of schools. That it was a very, small and a school specifically designed for um, sunshines and, little shining stars. Okay, but my from so early on, while I got, shifted to my first standard, that was a basic public school in my localite, and that was a really, nice one, that too. Okay, so my school scenario was that. Now you have to jot down the ideas as to where are you coming from. Okay, alongside आप अपने स्कूल के बारे में तो बता दोगे, ठीक है, सो फार सो गुड. ओके, यहाँ तक तो हमें चीज़ें क्लियर हो गई है, बट have any one of us ever encountered a school which is based out on slum area, जो कि झुग्गी जैसे स्लम डॉग मिलेनियर में हमने यही देखा था ना कि स्लम से आया हुआ लड़का कैसे मिलेनियर बन जाता है ना, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी थी. ही सेट अप अ बेंचमार्क दैट वे. आर वी सो गेटिंग इट? आर वी क्लियर? आर वी गुड? जल्दी बताओ. आई थिंक वी आर. Yes, perfect. So I'll tell you my story. Back in the day, while I was in my college days, I used to work for an NGO. I would go there in order to, teach all these kids belonging to not having been able to have, more exposure in their lives. So I got this chance to teach them, to interact with them. Therefore I realized that these people are not at all shallow, but the thing is that their narratives are, less, their narratives are small. But if we are able to guide them through, or if we are able to educate them through, or maybe enlighten their path, then they become unstoppable like any one of us. Because you know what, humans potential is the utmost potential of all the creatures we have. Okay, so whether a child, whether a person belonging from, rags, or a person uh, who'd like to call themselves as riches, it doesn't really matter. Regardless of who you are, wheresoever you are coming from, human potential is the utmost potential, is what I'd like to believe. And
That is what I'd like to inculcate in every one of us, every one of you. Okay, so even if, like, no matter what, even if you are coming from a family or a background who can't afford education, paid education, so to speak, then YouTube is to the rescue. Maybe we have many like opportunities to get our hands on these days. We have classes or education for free. Okay, YouTube has been acting such a boon to society, to education, wherein students can get to have nuggets of wisdom if they utilize it in the right manner. Okay, तो यहाँ से हमने स्लम डॉग की स्टोरी देखी है, यानी कि स्लम से आए हुए बच्चे, उनका स्कूलिंग कैसा होता होगा, उसके बारे में हमारे ऑथर साहब ने कुछ एक्सप्लेन करा है. ओके, बहुत ही सेंसिटाइज टॉपिक है ये, एंड आईड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू be all ears and to be able to understand the depth of the topic itself. Okay, of the poem itself. अब यहाँ से सीधा सीधा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में अबाउट द पोएट के बारे में. इस कहानी के जो, इस कविता के जो पोएट है ना, उनका नाम है जी स्टीफन स्पेंडर. Question arises in exam is, tell me या फिर name the author, name the poet of the poem an elementary school classroom in a slum. पहली बात तो पोम का नाम इतना बड़ा है कि आपको उनकी नाम से ही ये चीज़ जो है स्ट्राइक कर जानी चाहिए, that Stephen, who else other than Stephen Spender could it be? Okay, so he would definitely be Stephen Spender. उनकी शक्ल एक बार ध्यान से देख लो. He had such peculiar eyes, and we can just have a gist of him by capturing his pictorial representation or pictorial image in our minds. Okay, चलो, with that said, ये हमें clear हो गया. Now another thing, Stephen Spender की जो life story है ना, why is it necessary to understand? To have a better understanding of the poem itself. बाकी other than that, एक नंबर के अलावा यहाँ से एग्जाम में और कुछ नहीं आएगा. Mark my words. Max, you will be asked name the poet, about the name of the poet. That's it. So let's just deep dive into the poem and about the poet itself. ठीक है, Stephen Spender was born in 1901 and he died in 1995. That's it. Even if you don't you're not able to recall it, that is absolutely fine. बस poem का crux समझ लेना कि किस circumstances में, किस state of deplorable society में रह के उन्होंने जो है इस idea को एक पेपर पे डिक्टेट करा होगा, लिखा होगा. ओके, एक्सप्रेस करा होगा. सो ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट. वो एक इंग्लिश कवि रहे हैं और निबंधकार रहे हैं. ओके, ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज. उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, विदाउट टेकिंग अ डिग्री, एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930. सो ही लेफ्ट the college without taking any degree. Isn't it bizarre to hear of such a poet जिन्होंने अपनी डिग्री पूरी नहीं करी? वो just one day he got up and he went for Berlin. He left for Berlin without having to think too much, without having to fret on too much about his degree thing and stuff like that. ठीक है, so he moved to Berlin in 1930. So while his reigning period, जो उनका living period था, उसमें 1930 में ही मूव टू बर्लिन. अब उन्होंने वहाँ पे क्या करा था? स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट. कीन क्या होता है? बहुत ही वाइड इंटरेस्ट उन्होंने शो करा था इन पॉलिटिक्स. ठीक है, राजनीति में उनका खासी इंटरेस्ट था. सो ही थॉट लाइक, what is the need of even studying, when politics is to the rescue, and declared himself to be a socialist and pacifist. उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था कि मैं तो सोशलिस्ट हूँ, सामाजिक हूँ, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहता हूँ, एंड पैसिफिस्ट. पैसिफिस्ट क्या होते हैं? जैसे कि हमारे गांधी जी रहे हैं, जो कि वायलेंस में, वायलेंट एक्ट में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं. ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन नॉन वायलेंट एक्ट या नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं जो. ठीक है, सो दोज आर पैसिफिस्ट. जैसे हम बोलते हैं ना, किसी सिचुएशन को पैसिफाई करना, कि काम डाउन करके, कूल डाउन करके बस शांत कर देना. ठीक है, जस्ट द वंस हु डू नॉट इग्नाइट द सिचुएशन, द वंस हु डोंट लेट द कंडीशन टू बी हीटेड ऑन, ओके, ऑन द स्टोव, सो टू स्पीक. चलो, सो हियर इज टू स्टीफन स्पेंडर. बच्चा, आप जो है पोएट क्या सोच रहे थे और उनके क्या क्या और प्रसिद्ध पॉपुलर पब्लिश्ड नोवेल्स कम बुक्स रही हैं, उनके बारे में देख लेते हैं.
सो अबाउट द पोइट में हम देख लेते हैं बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड, उनकी कौन कौन सी बुक्स है, पोम्स ऑफ डेडिकेशन, डेडिकेशन की पोम्स लिखते थे वो, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये सारे इनके राइटअप्स हैं. एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम क्या सोच के लिखा था. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आइडिया और द थीम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम. एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर में कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम एक्सप्लेन करो. सो इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, ये जो पोम है, ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज. देखो, because he had a keen interest, he's shown his keen interest in politics, and he renounced himself to be a pacifist and a socialist. समाज के लिए वो कुछ करना चाहते थे. सो ही वेंट अप टू सर्टेन किड्स, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के वो स्कूल्स या झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं. वहाँ पे देखते हैं बच्चे कैसे अपनी एजुकेशन को ग्रहण करते हैं. हाउ आर दे कोपिंग अप विद हार्डशिप्स, विद देयर शॉर्टकमिंग्स, विद देयर स्ट्रगल्स. तो वो देखते हैं यार ये तो समाज में बहुत अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है. वेर इन लाइक we know of people who get admitted in the elitist of schools, जो बाहर के इतने क्लासी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं. नॉट दैट हार्ड वर्क डजंट कम इन टू प्ले, ऑफ कोर्स इट प्लेज अ ह्यूज रोल, बट वी नो ऑफ पीपल हु are who are prevailing in the stigma of nepotism as well, who come by having a back or a jack or something of that sort, who are just rich brats and who didn't do anything but to pay the stipulated amount of ransom amount of money in order to get admitted into a certain school. स्कूलिंग के लिए भी बेटा बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है. अगर प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में अच्छे से अच्छे स्कूल में किसी को पढ़ना, देयर इज़ नो बार टू एजुकेशन. तो यहाँ पे बोला गया कि यार वो देख रहे हैं कि यार कितना अन्याय है कि ऑन वन साइड वी सी पीपल हु स्पेंड ईयर्स ऑफ टन्स एंड टन्स ऑफ मनी फॉर देयर स्कूलिंग, but on the other side we legit have people who have zero amount of money, okay, who are just making who just make do with the things, with the little tad bits of everything whatever they have, okay, in their pockets. एंड क्लास इनइक्वालिटीज़ की ये इतना जातिवाद में इतना अंतर क्यों है जी. लाइक व्हाट इज why is there so much of discrimination for education. एवरी स्टूडेंट लाइक गर्ल चाइल्ड फॉर फ्री एजुकेशन, क्यों इतनी सारी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, बिकॉज एजुकेशन इज समथिंग विच शुडंट बी बॉट, है ना, इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर फ्री टू एवरी इंडिविजुअल. इसलिए क्लास इनइक्वालिटी उनको बहुत ज़्यादा पिंच करती है कि बाकी सब ठीक है, पढ़ाई के लिए पैसे क्यों देने हैं. दैट थिंग बॉदर्स हिम द मोस्ट, ठीक है. सो दिस इज वॉट द स्टोरी टेल्स अस द मोस्ट अबाउट. ओके, चलो, शैल वी बिगिन? Or do we have any doubts in pertainance to the topic? Does anyone want to add on something? Kindly collate, kindly engage and indulge with us. Alrighty? Okay, yeah, sorry. Yeah, I think we are good now. Yes, bacha? Aren't we? Yes? Chalo, let's begin. Let's continue. Now, when it comes to the poem itself, the poem has been, secluded and divided into multiple paragraphs, जिसमें बहुत सारी story lines है. So what I'm gonna do is I'll at max take 4 lines in a row in a bit. I'll explain all the word meanings to you, and alongside I'll just
walk you through around the brief idea, or I'll elucidate it to you. Okay, that's how our poem will have a rough idea and it shall begin. ठीक है. So about the poem में अर्ज किया है, प्रस्तुति है जी. फर्स्ट लाइन कहती है, far far from gusty waves. far far मतलब दूर, बहुत दूर है वो किसी से. gusty waves से, gusty होता है जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही इरेगुलर हो, फुल ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं वेव्स. जो हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा होता है ना, वेर इन वी गेट टू सी अ टमेटो और अ स्क्विश्ड फेस्ड चाइल्ड, वो उसमें एक मूनशाइन होती है उसके चेहरे पे. बहुत ही चीक्स उसके रेड होते हैं, चबी चीक्स, डिम्पल चिन, रोजी लिप्स, टीथ विद इन, ऐसा बोला जाता है. कर्ली हेयर, वेरी फेयर, आइज आर ब्लू, लवली टू, ऐसे ऐसा बोलते हैं. दिस वॉज अ पोम बैक इन द डे वाइल आई हैड माई प्रेलिमिनरी क्लासेस. तो वहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि एक ग्लोई चाइल्ड जो होता है ना, जब वो पैदा होता है काफ़ी हेल्दी वेल्दी होता है, अच्छा सा दिखता है वो, या दिखती है, कोई भी हो सकता है. तो अब ऐसा कुछ नहीं है उन मासूम बच्चे जो हैं. सो वेर एन आई सपोजडली आई एम अ टीचर, या स्टीफन स्पेंडर कोई सोशलिस्ट रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, जो कि सच में है. आई एम अ टीचर, आई एम एन एडुकेटर फॉर रियल, एंड सो वॉज ही वॉज अ सोशलिस्ट फॉर रियल. आइदर ऑफ अस वेंट ऑन टू अ सर्वे. मैं गई हूँ स्लम में देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ वहाँ की कैसी हालत है जी, द सिचुएशनशिप दैट इज़ गोइंग ऑन देयर. सो वॉट आई सी इज़, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. बहुत मतलब एक जो हंसता खिलखिलाता चेहरा होता है ना, उससे तो कोसों दूर है. ठीक है, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, ये जो इन बच्चों की मासूमियत, इनोसेंस भरे चेहरे हैं ना, उनसे तो वो बहुत दूर है. इट्स लाइक नो वेयर क्लोजर टू a face which shines, which blossoms, gloomy faces, और gloomy faces दिख रहे हैं एकदम. ठीक है, like rootless weeds, ऐसे लग रहा है बेजान है, unwanted, legit, like rootless weeds. rootless क्या होता है, without any roots, without any foundation. ऐसे लग रहा है उनकी कोई वैल्यूज नहीं है, बस ऐसे ही unwanted बीज जो होते हैं ना, आटे के साथ घुन भी पिसता है टाइप्स, तो ऐसे ही वो कहीं पे भी पैदा हो गए हैं. नोबडी वांटेड देम टू हैपन. ठीक है, बेसिकली द हेयर टॉन, उनके जो बाल है ना वो एकदम टॉन का मतलब ये नहीं है कि काट पीट रखे हैं या फटे हुए हैं बाल, टॉन नहीं हो सकते हैं. बट द हेयर वर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, या हेयर की अच्छे से नरिशमेंट नहीं थी, और इम्प्रॉपरली कट थे वो, बिल्कुल भी अनकोम्ड, बिना कंघी के ऐसे ही बाल लग रहे हैं. बहुत ही मैसी, बहुत ही शैबी से सा लुक है. राउंड देयर पैलर, पैलर क्या होता है, उनका पीला चेहरा. जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइक आई मैंशन, व्हेन चाइल्ड इज इन व्हेन अ चाइल्ड इज इन देयर अर्ली एज, अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, देयर फेसेस लिटरली शाइन ऑन. ओके, बहुत ग्लो करता है, टमेटो की तरह रेड फेस लगता है, बट यहाँ पे तो पिलपिला हो गया फेस यार. और उनके बाल भी इम्प्रॉपरली कट है, वेल मेंटेन नहीं है, अनकोम्ड है, बहुत ही अजीब से लग रहे हैं, शाबी सा लुक है, बहुत ही स्टिंकी सा लुक लग रहा है. अनवांटेड बच्चे लग रहे हैं वो, और उनके चेहरे पे कोई एनर्जी नहीं है, डल फेसेस हैं, ऐसे नीचे मुरझाया हुआ चेहरा है बिल्कुल. गॉट इट. यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स है. फार फार मतलब बहुत दूर, गस्टी स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर. गस्टी वेव्स क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, उससे तो बहुत दूर है, एनर्जी तो दूर की बात है. ढीले ढीले से बच्चे लग रहे हैं एकदम, लीन एंड लैंकी एंड लेथार्जिक. ओके, लेट बैक लग रहा है काफ़ी. नाउ रूटलेस, विदाउट एनी रूट्स, विदाउट एनी फाउंडेशन. वीड्स क्या होता है, अनवांटेड लग रहे हैं. टॉन होता है इम्प्रॉपरली कट या फिर अनकोम्ड. पैलर होता है पेल फेस. ऑलराइटी, चलो जी. सो वॉट वी आर एबल टू डिसाइफर हियर इज वेरी फार फ्रॉम बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, बहुत दूर है वो एनर्जी से भरे हुए से. द फेसेस आर विदाउट एनी एनर्जी, उनके चेहरे पे कोई एनर्जी नहीं है. दीज चिल्ड्रन अपीयर एज इफ दे डू नॉट हैव एनी रूट्स और वैल्यूज़. ये बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो कि इनके कोई रूट्स नहीं, कोई वैल्यूज़ नहीं. इट लुक्स लाइक दे आर अनवांटेड इन द सोसाइटी. वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सोसाइटी उनको चाहती नहीं है, वो बस ऐਵੇਂ ही पैदा हो गए हैं, ऐसे ही आ गए हैं. ठीक है. द हेयर आर इम्प्रॉपरली कट, बालों को ऐसे से कर दो. आई एम नॉट गोना डू दैट फॉर यू एट द मोमेंट, बट इम्प्रॉपरली कट है, अनकोम्ड है, बिल्कुल कंघी नहीं की हुई है, जुएं निकल जाते हैं उनमें. ठीक है. देयर हेयर आर फॉलिंग ऑन द पेल लुकिंग वीक फेसेस. एक तो नाजुक कमज़ोर सा चेहरा है, पिल पिला गया, पेल है, और उनके सारे बाल उनके सर पे ऐसे गिर रहे हैं ऐसे करके. ठीक है. Now most of the students have accepted their present conditions. सबको like by now everyone's got the hang of it. Everyone's realized that this is our life and we have to sustain in such a filthy condition only. हमें ऐसे ही survive करना है.
ठीक है जी. दे डू नॉट हैव एनी डिज़ायर टू मूव अहेड. किसी को ऐसा नहीं है, चाह नहीं है कि हम कुछ करके दिखाएंगे. उनके डल फेसेस स्ट्रांगली ये शो कर रहे हैं. दे डोंट हैव एनी ड्राइव इन देयर लाइव्स. ओके, उनको कुछ नहीं करना अपनी ज़िंदगी में. ऑलराइटी, कूल. So this is what the first two lines present to you. Okay, now furthermore, अब हम देखते हैं आगे. The tall girl with her weighed down head. एक बड़ी सी लड़की है, उसका सर एकदम झुका हुआ है. weighed down, weight नहीं है, बस झुका हुआ सर है. The paper seeming boy with rat's eyes. अब वो बच्चों की कुछ स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं, बच्चों को गौर फरमा रहा है, नोटिस कर रहे हैं. स्टीफन स्पेंडर, मैंने भी नोटिस किया, मैंने देखा कि वो किस किस भली भांति भांति के बच्चे हैं. सो आई अंडरस्टैंड द नुआंसेस एंड द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ दीज किड्स. ओके, at least I'll observe them very deeply and insightfully. तो मैंने देखा, या स्टीफन स्पेंडर ने देखा, एक बड़ी सी लड़की है, टॉल सी लड़की है, लेकिन वो कीपिंग लो, उसका सर एकदम उसकी बैक के साथ झुका हुआ है, बिकॉज शी इज़ बैगेज विद the burden of society, the burden of poverty, most of all, mostly. तो गरीबी का, सोसाइटी का, समाज का बोझ है उस लड़की पे बहुत, काफ़ी धीरे धीरे सी है. उसका हेड डाउन है, her head is always down. The paper seeming boy, paper seeming boy ऐसे नहीं है कि वो बॉय पेपर को देख रहा है, दूसरा एक लड़का देख रहे हैं. वो ऐसा नहीं है कि बच्चा पेपर को देख रहा है, वो पेपर की तरह पतला लग रहा है, लीन लैंकी लाउजी, बहुत ही पेपर की तरह पतला, कोई जान नहीं है उस बच्चे में. पेपर की तरह दिखता हुआ लड़का विद रैट्स आइज, और उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे जैसी, वल्नरेबल आइज हैं, वो कुछ चाह रही हैं बस. द स्टंटेड, स्टंटेड क्या होता है बेटा, अंडर डेवलप्ड, यानी कि जिसका पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है. यहाँ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड चाइल्ड, द थर्ड किड. द स्टंटेड, जिसका पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ. अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि एक ऐसा उत्तराधिकारी है, वो लीगल ओनर है, जिसके पूर्वज ने उसे गिफ्ट में क्या दिया है, ट्रेड्स अपने क्या दिया है, ट्विस्टेड बोन्स. उसकी जो हड्डी है ना वो ट्विस्ट हो रखी है, लाइक ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड अप प्रॉपरली, हिज बोन्स आर ट्विस्टेड एंड ही इज़ ऑलवेज he is always leaned down upon someone or the other. He's always he doesn't have the right posture. वो स्वास्थ्य रूप से काफ़ी वीक है. रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़, और वो क्या पोम को सुना रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से दिखा रहा है, और अपने पिताजी के नाल डिजीज़, रफ ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी के बारे में बता रहा है. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो पढ़ पढ़ के सुना रहा है कि कैसे उसके फादर को नाल डिजीज़ है, ट्विस्टेड बोन्स वाली बीमारी है, जो उसको इनहेरिटेडली मिली है. ओके, ही इज़ द इनहेरिटर ऑफ, ही हैज़ बिन अनलकी, क्योंकि एक तो गरीबी वाले सोसाइटी में पैदा हो गया है, प्लस अनलकी भी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बदनसीब हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, द टॉल गर्ल, लंबी सी लड़की जिसका वेट जो है झुका हुआ है, उसका सर झुका हुआ है गरीबी के बोझ से, और नॉट जस्ट गरीबी के बोझ से, बट वैसे भी वो काफ़ी वीक है. एक पतला सा, वीक सा, मासूम सा लड़का है, पेपर की तरह वो दिख रहा है. His eyes are also rats. His eyes also resemble. His eyes resemble with that of rats. Okay, rat की तरह resemble कर रही है. बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड तीसरा लड़का है, जो जिसको गिफ्ट में, जिसको अपने पूर्वजों से मिला, तो वो जो कि ट्विस्टेड बोन्स थी, कमर झुकी हुई है, और अपने फादर के ट्विस्टेड बोन्स की स्टोरी, उसकी उनकी बीमारी सुना रहा है, अपने लेसन को सुना रहा है अपने डेस्क से. ठीक है, यहाँ पे क्या बोले, इन द क्लास में देर इज़ अ गर्ल हु इज़ टॉल, एक लड़की है जो लंबी है. हर हेड इज़ बाउड डाउन, उसका सर झुका हुआ है, ड्यू टू बर्डन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बोझ से. शी इज़ लुकिंग सिक एंड टायर्ड, गरीब, बीमार लग रही है, थकी हुई. अ बॉय इज एज थिन एज अ वाइट पेपर, बिल्कुल पेपर की तरह. हिज आइज आर लाइक आइज ऑफ अ रैट, रैट की तरह आंखें लग रही है. इसका मतलब ये है कि उसकी आंखें लग रही है लालची से, लालच से भरी हुई, ग्रीडी लग रही है, और नॉर्मल से अलग लग रही है, बिकॉज ही इज़ वेरी थिन एंड हिज आईज लुक प्रोजेक्टिंग मोर देन नॉर्मल. मतलब नॉर्मल से तो हटके लग रही है, उसकी आईज में कुछ भूख है. ठीक है जी. अब क्या होता है बेटा, एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड. अब क्लास के बारे में क्या बोला है, डिम है, डिम लाइट होती है ना, कि मुरझाई हुई क्लास है, प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है. पीपल आर अफेक्टिंग देयर आईज,
दे आर डिम विटेड, बहुत ही ज़्यादा उनकी नज़दीकी वो उनकी जो साइट है वो कमज़ोर हो गई है, किसी ने नोटिस नहीं करा, नोट नहीं करा, बहुत स्वीट सा यंग सा बॉय है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें जो हैं एकदम ड्रीम में रहती हैं, सपनों में रहती हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम, स्क्विरल का गेम चल रहा है इन ट्री रूम अदर दैन दिस, ठीक है। गिलेरियो का अब वो जो बच्चा है ना, ही इज़ ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, ही sorry yeah, so this guy is least interested as to what's happening around himself, around him so to speak, उसके आसपास क्या चल रहा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही इज़ ऑलवेज लुकिंग आउटसाइड, लॉस्ट इन हिज ओन ड्रीम, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस वो अननोटेड है, अननोटिस बॉय है, बहुत ही स्वीट सा यंग सा लड़का है, उसकी जो आंखें हैं वो ड्रीम में रह रही हैं, स्क्विरल का गेम चल रहा है वहाँ पे, ट्री रूम में है वो अदर दैन दिस, ठीक है। सो दे आर इन द ट्री रूम और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सो टू स्पीक, ठीक है जी। कूल क्लियर सॉर्टेड, बताओ जी, जल्दी बताओ, लेट मी नो एज टू लाइक इफ थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर और नॉट। Yes, I think so far so good, है ना? Yes, give me a cheer, give me a thumbs up. Yes, चलो लेट्स मूव अहेड। अब क्या होता है, पहली लड़की के बारे में बताया, हु इज टॉल बट हर हेड वॉज बाउड डाउन ड्यू टू द बर्डनाइज्ड स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी। The second boy seemed as thin as a paper seeming boy, that is why he was being called. Now the boy's eyes were that of a rat's, resembled with the rat's eyes, because they were as greedy as a rat's eyes seem to be. चलो जी, ये हमें समझ आ गया। अब थर्ड बॉय जो था, देयर वाज अ बॉय हु probably was an unlucky eye of twisted bones, जिसको अपने फादर के नाल डिजीज़ को रिसाइट करा था, ही वॉज वीक, ठीक है। अब बैक बेंच पे एक डिम क्लास में प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, वहाँ पे एक बॉय बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उस बॉय पे नज़र नहीं पड़ी है, वन अननोटेड, यानी कि एक ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहा है क्लास में क्या चल रहा है, बट स्वीट सा यंग सा बॉय है, वो अपनी ड्रीम में खोया हुआ है, ही इज़ बिन सबमर्ज्ड इन हिज ओन लिविंग ड्रीम, इन हिज ओन नटशेल। ऐसा लगता है कि वो गिलहरी के गेम्स खेल रहा है, ट्री रूम में है, अदर दैन दिस, ठीक है। नाउ वन बॉय इज सिटिंग एट द बैक बेंच, एक बॉय जो है बैक बेंच पे बैठा हुआ है। द क्लासरूम डजंट हैव एडिक्वेट लाइट, हेंस इट इज़ कॉल्ड अ डिम क्लासरूम। क्लासरूम जो है उसके पास प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, इसलिए उसको डिम क्लासरूम बोलते हैं। द बॉय इज़ यंग एंड चार्मिंग, बॉय जो है यंग लग रहा है और चार्मिंग भी लग रहा है। ये इसकी समरी है बेटा, नोबडी हैज़ नोटिस्ड हिम, उसको किसी ने नोटिस नहीं करा। द क्लासरूम हैज़ बिन रेफर्ड एज डिम टू इंडिकेट लैक और एब्सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर दी स्टूडेंट्स। ये जो क्लासरूम है ना, इसको डिम बोला गया है क्योंकि ये इंडिकेट करी है कि बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ज़्यादा खास, ठीक है। चलो, he doesn't seem to be noting down anything from the lesson taught in the class. ऐसे लग रहा है कि उसने कुछ ज़्यादा नोट डाउन नहीं करा है क्लास में, जो कुछ भी चल रहा है, he is drowned in his own dream, in his old nutshell, in his own world. उसकी ड्रीमी आइज़ हैं, वो बाहर देख रहा है गिलहरी कैसे गेम्स खेल रही है, पेड़ के छेद पे कैसे जा रहे हैं, ये जो होल है ना ट्री में, स्टेम, जो गिलहरी है ना वो होल बना के वो ट्री के अंदर कैसे घुस रही है, स्क्विरल कहाँ रहती है, ट्री होल के बारे में बताया गया है।
अब जो रेफरेंस है ना स्क्विरल गेम का, इसका मतलब ये है द बॉय इज प्लेफुल, ओके, ही डजंट मीन टू साउंड दैट ही इज रियली लॉस्ट, ही वांट्स टू बी इंडिकेटेड एज अ प्लेफुल वन। वो थोड़ा खेलता है, शैतान सा, स्वीट सा, यंग सा लड़का है। द अटेंशन ऑफ द बॉय इज टू द वर्ल्ड आउटसाइड। अब यहाँ पे अगर इफ़ वी लुक इन टू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक इटसेल्फ, द लाइन्स, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो बॉय है ना, इसका मतलब ये है कि वो बाहरी दुनिया में जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ही वॉन्ट्स टू ही डजंट वॉन्ट टू गेट सल्क्ड इन टू द डीप होल of drowned in the state of poverty. He wants to get out, he wants to be a little more playful. मान जाइए दैट ही इज़ हैविंग ड्रीम्स ऑफ प्लेइंग इन द ओपन वर्ल्ड। उसके ऐसे सपने हैं जो ओपन वर्ल्ड में खेलना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, बाहर निकल के उड़ना चाहते हैं, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय हिज सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स या फिर कंडीशंस। जो भी उस पर रिस्ट्रेंस हैं, जो भी उस पर पाबंदियाँ हैं, उनको तांग के, उनको लांग के ही वॉन्ट्स टू मूव अहेड, ठीक है। तो वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है जी। ऑलराइटी, चलो जी, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इट इन अ बिट स्वीट मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है बेटा, आगे की लाइन्स है, ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशन। यहाँ पे बोला गया है अब स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में कि बिल्डिंग कैसे दिखती है। भाई झुग्गी झोपड़ी में घर है, कोई स्कूल है, what else do you expect out of that school? The school was improperly maintained, it was very shabby and very shady. अब उस वॉल पे ना बहुत ही ज़्यादा शेडी क्रीम वॉल है, वो सावर खट्टी दीवारें लग रही है, यानी कि कभी वाइट बनी होगी, पेंट किया होगा उस पर, बट दैट टर्न्ड आउट टू बी येलो इवेंचुअली। सो सावर क्रीम डल येलो कलर की वॉल्स हैं। वहाँ पे डोनेशंस, कुछ लोगों ने पैसे दिए हैं और उन पे पोस्टर्स लगाए हैं, just so people could understand could get motivated in a better manner, ठीक है। अब उन पोस्टर्स में क्या क्या है, बेसिकली शेक्सपियर का हेड है, ठीक है। शेक्सपियर की फोटो लगी है, क्लाउडलेस एट डॉन, यानी कि अर्ली मॉर्निंग की तरह वो एक इतना क्लाउडलेस लग रहा है। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, ऐसे लग रहा है कि जो डोम है वहाँ पे एक चर्च है। डोम शेप क्या होता है, चर्च होता है, तो चर्च की शेप भी है। तो वहाँ पे क्या है, एक तो रे ऑफ होप है विच इज़ क्लाउडलेस डॉन, यानी कि सनराइज का एक प्रतीक है, जिसका मतलब अर्ली मॉर्निंग है, कोई होप है, अ रे ऑफ होप इज़ देयर, और चर्च है। तो ये सारी पॉजिटिव वाइब्स दी गई हैं। सो कलर ऑफ वॉल्स ऑफ द क्लास रूम इज़ डल येलो, जो क्लासरूम की वॉल्स है ना वो डल येलो है। थ्रू डोनेशंस, लोगों ने पैसे दिए हैं, डोनेट करा, सम पोस्टर्स हैव बीन पुट ऑन द वॉल्स, कुछ पोस्टर्स चिपकाए हुए हैं। द शेक्सपियर पोस्टर रिप्रेजेंट्स एजुकेशन, शेक्सपियर का पोस्टर लगा हुआ है, दैट मीन्स एजुकेशन, शिक्षा करो, पढ़ो लिखो बनो नवाब, है ना। द पोस्टर ऑफ राइजिंग सन रिप्रेजेंट्स लाइट एंड होप ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो कुछ लोगों ने पोस्टर लगाए राइजिंग सन के, इसका मतलब लाइट है, रे ऑफ होप है, पूरे संसार में अमन कायम रहे, ठीक है। चलो जी, अब एक लाइन आती है बेटा, बेल्ड फ्लावरी टाइरोलीज वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। यहाँ पे क्या बोला गया है, बेल्ड फ्लावरी टाइरोलिस वैली, और बाकी जो डोम शेप में दिखाया गया है, इसका मतलब देयर इज अ पोस्टर ऑफ चर्च, चर्च के पोस्टर है। बेल्ड वर्ड का मतलब होता है चर्च, क्योंकि एवरी चर्च हैज़ अ बेल, ठीक है, हर चर्च पे बेल होती है। देयर इज अ पोस्टर ऑफ टाइरोलीज रिवर वैली विच इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। टाइरोलीज वैली का रिवर है जो कि फ्लावर्स से भरा हुआ है। देयर इज़ अ पोस्टर ऑफ मैप ऑफ द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड मैप भी लगा हुआ है। सोचो, वर्ल्ड मैप मतलब इट्स अ की टू escape out of the imprisonment. Okay, it's a key which escapes its way out of an imprisonment, है ना। और या फिर कह सकते हैं इट्स अ की of any escaping mechanism, it's a key to the real world, but is it even feasible enough for these children? क्या ये स्लम से पले बड़े बच्चे दीवार को तांग के, जिनको कोई मोटिवेशन नहीं है, वो क्या पूरे वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं? सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ इवन हैविंग टू अंडरस्टैंड ऑफ द वर्ल्ड्स मैप? क्या ज़रूरत है इनको पढ़ने की? बहुत ही आयरॉनिकल सिचुएशन लग रही है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही सटायरिकल बात लग रही है। द मैप इज़ डिस्क्राइब्ड एज ओपन हैंडेड, मैप को पूरा ऐसे डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि द वर्ल्ड इज़ ओपन टू एवरीवन, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। वर्ल्ड इज़ ओपन टू एवरीवन, द वर्ल्ड गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन हु मेक्स एन अटेम्प्ट।
ये दुनिया, ये संसार सबको अपॉर्चुनिटी देता है जो भी उस पर अटेम्प्ट करता है. दस एवरीवन कैन चेंज वंस सर्कमस्टांसेस एंड क्रिएट वंस ओन वर्ल्ड. सब कोई अपनी सर्कमस्टांस चेंज कर सकता है और अपनी खुद की दुनिया बना सकता है जी, एज पर देम. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog. यहाँ पे बोला गया, और अभी भी इन बच्चों के लिए जो ये जो विंडोज़ है ना, बाहर निकलने का रास्ता है. नॉट दिस मैप, ज़रूरी नहीं कि जो मैप है, पर वो चाह रहे हैं कि दे डोंट वांट टू गेट एनस्लेव्ड, दे डू नॉट वांट एनी बाउंडेशंस. इनका फ्यूचर लेकिन काफ़ी हेजी, काफ़ी फॉगी लग रहा है, कोई क्लियर विजन नहीं है. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे बोला गया एक पतली सी गली जाती है इनके चौल में, इनकी बस्ती में, जिसने इनके आसमान को, जैसे बोलते हैं ना द स्काई इज पिंक, इनके आसमान को भी वेनमस बना रखा है, पॉइजनस लेड से कवर किया हुआ है. इनकी रिवर्स भी ऐसी ही हैं, इनके कपड़े भी ऐसे हैं, कोई सपना नहीं है इनका, कोई ड्राइव नहीं है, और खुला आसमान भी नहीं है भाई इनके पास. दैट मीन्स देयर फ्यूचर इज़ नॉट क्लियर, इट्स हेजी. उनके पास कोई विंडो नहीं है बाहर निकल के तांके जाने की. एज फॉग जो है विजिबिलिटी क्लियर दिखा देता है, उनकी सामाजिक आर्थिक कंडीशन भी वैसी ही है, फ्यूचर उनका बेरंग दिख रहा है. द लाइफ इज़ लिमिटेड टू स्लम्स, वो वहीं रहने वाले हैं. दिस लिमिटेड स्पेस डज नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देमसेल्व्स. वो उनकी नैरो स्ट्रीट, जो पतली गली है ना, वो इनमें सुधार नहीं ला सकते हैं कभी भी. सो द पोइट हियर इज़ फीलिंग पिटी फॉर दीज चिल्ड्रन. तो ये मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है कि यार ये काफ़ी लिमिटेशंस हैं इन बच्चों की ज़िंदगी में. अब लेड के बारे में अगर हम बात करें तो लेड एक ऐसा मेटल है जो कि हर चीज़ सील कर देता है, प्लग कर देता है, ओपनिंग को बंद कर देता है. सो सीलिंग द स्काई विद द लेड स्काई मतलब है कि स्काई को पे भी रोक लगा देना. स्काई इज़ द लिमिट, यानी कि लिमिटलेस लिमिट है आपकी, तो इस चीज़ पे रोक लगा देना, यानी कि सील कर देना लेड स्काई से. मेटाफोरिकली बोला है कि अपॉर्चुनिटी को कट कर देना, कट डाउन कर देना. रिवर का मतलब है कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, क्या ये रिवर की तरफ फ्लो ही बनेंगे. केव्स का मतलब है कपड़े. स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब है गुड एजुकेशन. दे आर डिप्राइव्ड एंड दे आर डिवोइड ऑफ एवरी बेसिक फैसिलिटीज़ और एम्यूनिटीज़ विच वन शुड गेट इन देयर रियल टाइम ऑफ लाइफ, है ना. उनकी बच्चों की ग्रोथ ना काफ़ी स्टेगनेंट है, रुकते पानी की तरह है, और डिसेंट क्लोथ्स नहीं है उनके पास, और अच्छी एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास में, ठीक है. तो अभी बोला है श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, शेक्सपियर बुरा रहा होगा तभी जो है इनकी फ़ोटो लगा रखे. द मैप बैड एग्जाम्पल. वर्ल्ड मैप क्यों लगाए इन बच्चों के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है. विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. ये सब इन बच्चों को ऐसे ही फालतू में झूठी होप्स, फॉल्स प्रोमिसेस दिखा रहे हैं इस बेरंग दुनिया में, विच इज़ ऑफ नो यूज़, है ना. ईविल बना दिया शेक्सपियर को, टेम्पटिंग यानी कि पिघला देने वाला. तो ये बच्चे बोल रहे हैं इनको एजुकेशन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई इनको मतलब नहीं है शेक्सपियर कौन है, वर्ल्ड मैप से इनको मतलब नहीं है, सनशाइन, सनराइज, शिप से कोई मतलब नहीं है, यानी कि एक्सेप्टेंस नहीं है उनकी लाइफ में. सो दे फील वेरी पिटी एंड बैड फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन. यहाँ पे बोला गया है अब इनकी जो लाइफ्स है ना बेटा, वो चुपके से टर्न हो रही है, एक डार्क होल में जा रही है, क्रैम्ड होल्स में जा रही है. उनकी ज़िंदगी फॉगी लग रही है, तो एंडलेस नाइट, उनकी रात कभी ख़त्म नहीं होने वाली, उनकी सुबह नहीं आने वाली कभी. ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, और इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलने वाली, इनके ज़िंदगी से डार्कनेस कभी ख़त्म नहीं होगी. स्लैग का मतलब है वो जो वेस्ट है ना, वो कभी नहीं जाएगा. दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स. ये ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे उनकी हड्डियाँ दिखाई देती है. एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास. ऐसा लग रहा है उनका चश्मा भी ऐसा है जो लोहे का है और उस पर कांच भी नहीं चढ़ा हुआ. लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि पत्थर की बॉटल बनी हो. तो ऐसे काफ़ी कठोर लग रही है इनकी दुनिया, काफ़ी ज़्यादा उससे, लाइक वन हैज़ टू ग्रो अ थिक स्किन इन ऑर्डर टू बी बॉर्न इन सच अ कंडीशन, है ना. पीप थ्रू यानी कि दिखाई देना, मेंडेड यानी कि रिपेयर करना, बिट्स है पीसेस, यानी कि ये चिल्ड्रन जो है ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे वेस्ट, लोग कूड़ा कचरा सब वहीं पे ड्रेन आउट करते हैं. डर्टी इन्वायरमेंट है, इनकी कंडीशन भी बेकार है, इनकी हड्डियाँ दिखाई देती हैं इनकी स्किन से, और सफिशिएंट फूड नहीं मिलता, दे आर फूड डिप्राइव्ड. उनके जो स्पेक्ट्स हैं वो लोहे के बने हुए हैं और ग्लास से रिपेयर किया गया है उन्हें. इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे पीसेस को जोड़ा जाए ना तब एक चश्मा बनेगा, विच इज़ ऑफ नो यूज़, कोई काम का नहीं है वो. इसका मतलब वो बाहर की दुनिया नहीं देख सकते हैं. काफ़ी डेप्थ है इसके पोम में, ठीक है. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. इनका पूरी ज़िंदगी फॉगी स्लम में बीत गई.
blot their maps with slums as big as doom, यहाँ पे बोला गया है तो अपने मैप्स को ब्लॉट कर दो स्लम्स के साथ, जितना बड़ा डूम है उतना ही बड़ा। इसका मतलब उनकी जो लाइफ है वो हमेशा डर्टी स्लम्स से लिमिटेड रहेगी। जो एरिया उनके बिगर स्लम्स में कवर्ड है वो एक मिसफॉर्च्यून है इन बच्चों के लिए, बदकिस्मती है कि वो एक ऐसी जगह पर पैदा हुए हैं जहाँ पे उन्हें एजुकेशन नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। इसका मतलब कि अपनी कंडीशन से बाहर निकलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, काफ़ी इम्पॉसिबल है, ठीक है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज, जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर कोई स्टेप नहीं लेंगे ये मैप इनके लिए बेरंग ही रहेगा। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जो उनके लिए स्टेप ले और इनकी लाइफ्स को यहाँ से बंद करके कोई एक अच्छी दुनिया में लेकर जाएं, ठीक है। कैटाकॉम का मतलब है डिफ़िकल्टी, जो इनके दिमाग में एक इनको एक ब्रेक दे, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यानी कि तुम अपने पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते रहो, फाइट करते रहो जब तक वो शहर को एक जैसा ना बना दें, ठीक है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को जो है हरे भरे खेतों से वाकिफ़ कराना चाहिए, अक्वेंट कराना चाहिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इन बच्चों को खुले मैदान में दौड़ाना चाहिए कि जहाँ जाने जाओ उस गोल्डन सैंड्स में घूमो, ठीक है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और उनको फ्री एजुकेशन देनी चाहिए कि सब पढ़ें, सब अच्छे से बात करें। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, यानी कि एजुकेशन सबकी है। It has no god, it has no power over any certain individual। तो वाइट ग्रीन लीव्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको इन्वायरमेंटल और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्लीन इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, बुक्स मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलना ही मिलना चाहिए। That's that. Okay, that this is the end of the chapter beta. Question answers we will discuss in a bit, बट बिफोर साइनिंग ऑफ मैं आपको इमर्ज के बारे में बता देती हूँ। इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जाम जो प्रैक्टिस है CBSE टर्म 1 के लिए। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस अपनी सहूलियत के साथ, अनलिमिटेड कोर्सेज का एक्सेस मिल रहा है आपको, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, एग्जॉस्टिव कवरेज है, मेंटोरशिप गाइडेंस है, स्टडी मटेरियल है। अनअकैडमी भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, हमारे एजुकेटर्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। 3 मंथ्स के लिए 2500 पर मंथ दे चार्ज यू। प्राइसिंग काफ़ी बजट फ्रेंडली है, काफ़ी नॉमिनल है। 24 मंथ्स पे जाओगे तो इट विल ओनली कॉस्ट यू 1042 रुपीज़ पर मंथ, which is which is such big of a deal. In addition to that, in addition to the same class 11 12th वालों के लिए तो बहुत आसान होने वाला है। It barely costs you 1250 bucks per month, है ना। In addition to which 10% ऑफ मिलेगा आपको if you happen to apply Nidhi01 code, and I mean you know the drill, है ना। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको पर्सनल कनेक्ट मिलता है हर एजुकेटर के साथ, घर में ट्यूटर्स लेते हो, यहाँ पे पर्सनली आप अटेंड कर सकते हो। आइकॉनिक की भी सब्सक्रिप्शन काफ़ी नॉमिनल है, आप किसी का भी पार्ट बनो, बट मेक श्योर Nidhi01 कोड लगा लेना, इन पे 10% ऑफ मिलेगा ना। आई बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एनी विच वेज और द अदर। कोई भी फ्री कंटेंट अनलॉक करना हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, सो डोंट फॉरगेट लाइक मेन्यू बटन पे जाके इनवाइट कोड Nidhi01 लगाना है। अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास इंटरेक्शन में लाइव क्लासेस जो है हमारी सहूलियत के साथ होती है, ठीक है। कोई बफर नहीं है, रियल टाइम इंटरेक्शन है, क्वेश्चंस पूछो, लाइव पोल क्विजेज लो, पोल लीडर बोर्ड होगा, एवरीथिंग इज being made available to you। 11th क्लास वालों के लिए, 12th क्लास वालों के लिए कुछ स्टेप्स है क्विज को ज्वाइन करने के लिए। स्पेशल क्लास का टाइम टेबल भी है, आप फोकस कर सकते हो बैच पे। अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं हमारे कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और साइंसेस के लिए। डू जॉइन द सेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, गूगल प्ले, ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। ट्राई माई कोड एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Last but not least, don't forget to like, share and subscribe to Unacademy Scholars, and don't forget to like this very session as well, and I'll see you in my upcoming sessions. Okay, bye bye, take care and have a great day ahead. Bye.